It was the 30th of January when India detected its first case of coronavirus. It was a student from Kerala that had just returned from Wuhan. At the time, the government was planning to evacuate Indians stuck in China, which had then been the epicenter of the virus and was under a lockdown. Back then, the number of coronavirus cases in the world had been under 8,000 and number of deaths due to it had just been over 170, all in China. It's been more than a year since the first case in India was detected, and since then, the number has drastically increased. We have now learned about the virus and changed our strategies against it. Hello and namaste everyone. I Yukti present the heartiest welcome to all the listeners of the podcast series Samvad brought to you by the NSS, the North Cap University. I'll be your host for today's episode with Ayush Jain as my co-host who is volunteer at NSS NCU, and it's an absolute honor to present to you our guest on our podcast series, Mr. Samarth and Ms. Sanya, COVID fighters who are the member of NSS. Thank you, Yukti. So we welcome Samarth and Sanya to our podcast series. So today we are seeing in India that COVID cases are rising on a very high level day by day. Cases all over the state, all over the India is rising, and everyone is looking out for beds, oxygen cylinders, and everything. So today we have Samarth and Sanya, the volunteer of NSS NCU. So they'll be sharing their experience कि उनको जब कोविड हुआ कि कैसे कैसे हुआ था क्या क्या हुआ था. They'll be sharing their journey and precautions क्या क्या लेने चाहिए हमें. So हमने आज के सेशन में भी हमने पूरा प्लान किया था कि हम जब हम प्रिकॉशन अपने घरों में ले ही रहे हैं तो आज भी हम सब काढ़ा लेके बैठे हैं यहाँ पर जो हमारा सेशन है. So I would like to do cheers with everyone and stay safe and सब please घर पर काढ़ा ड्रिंक करें. So over to you, Yukti. Welcome, Samarth and Sanya. So, now how are you both, guys? Thank you. First of all, I would like to thank you guys only for giving me a chance to talk about it. And right now, I'm pretty well. A little bit cough, and rest all is fine. And Sanya, you? Hi, thank you so much for having me here. I'm fine. There is no issue anymore. Thank. So from Samarth and Sanya, आपको कब पता चला कि that you are COVID positive and मतलब कि कैसे हुआ आपको पता हो कुछ आइडिया हो कैसे हुआ था. So एक बार आप जरूर शेयर करें. मेरा पर्सनली मैं लाइक 31st March यू कैन से वाज द डेट जब मेरे को ऐसा हुआ कि मेरे को बहुत ज्यादा सिम्टम्स है ऐसे कह सकते हैं. उससे पहले भी लाइक जो जनवरी फरवरी का टाइम था थोड़ा हम लोग जैसे वैक्सीनेशन लगनी स्टार्ट हो गई थी तो हम लोग थोड़ा खुल गए थे. अब बाहर जाना शुरू कर दिया था. ऑल्दो मास्क लगा रहे थे सारे प्रिकॉशंस ले रहे थे लेकिन जाना आना जाना शुरू कर दिया था. एंड मैंने कॉलेज फरवरी में मैं काफी काफी कॉलेज गया हूँ लाइक टीचर से डाउट्स लेना या फिर फ्रेंड से मिलना ये सारी चीजों के लिए मैं काफी कॉलेज काफी टाइम गया था. तो ऑन 31st मैं कॉलेज से ही वापस आया था. तो 31st को आई हैड बॉडी पेन. मतलब मेरे को लगा था मैं खेला हूँ इतना ज्यादा तो शायद इस वजह से है लेकिन वो जो बॉडी पेन था वो रात को मैं घर पे आते सो गया था. सोया तो रात को अराउंड 1 और 2 मैं उठा था एंड आई वॉज वेरी फिवरिश. मैंने कॉल करा मतलब मम्मी को कॉल करा नीचे से वो ऊपर आए थे और उन्होंने टेम्परेचर वगैरह चेक करा तो आई हैड 102 फीवर. तो वो एक तरह से उस टाइम ऑब्वियसली फीवर ये सारी चीज चली रही थी बढ़ ही रहा था धीरे धीरे. तो फीवरिश फील हो रहा था तो मैं अकेला हो गया था मतलब बाकी सब चले गए थे अलग अलग रूम्स में हो गए थे ताकि किसी और को वो चीज ना हो उस वो सोच के. तो तभी उसी के 1-2 दिन बाद मेरा फीवर नहीं उतरा तो मैंने टेस्टिंग करवाई थी लालपात लैब से और लाइक बेसिकली ऑर्डर करा था. घर पे आके टेस्ट करवाया था. तो उसके अगले दिन तो आई फाउंड आउट कि मैं पॉजिटिव हूँ. ओके समर्थ. सो काफी डिफिकल्ट रहा होगा फैमिली के लिए भी सबके लिए जब आपकी तबीयत खराब थी. मेरी तबीयत खराब थी और साथ साथ लाइक बेसिकली शायद मेरी वजह से ही उन लोगों को भी हो गया था लाइक उसी दिन से ही उसके 1-2 दिन बाद से ही लाइक सबको ही फीवर आना शुरू हो गया था. मेरी सिस्टर मेरे फादर मेरे मदर तीनों ही को ही फीवर था.
मेरे को काफी ज्यादा था, ऑल्दो दे हैड थोड़ा कम फीवर, बट उनको भी फीवर था। तो जिस दिन मेरी टेस्टिंग पॉजिटिव आई उसी दिन मैंने बुक कर दिया था। नेक्स्ट डे दे गॉट टेस्टेड एंड द अदर डे वो तीनों भी पॉजिटिव ही आए थे। तो उस दिन तक हम लोग आइसोलेटेड थे, सब अलग अलग रूम्स में थे, बट व्हेन वी गॉट टू नो कि चारों ही पॉजिटिव हैं तो वो थोड़ा आइसोलेशन कम हो गया था। वो, और मैं पर्सनली मैं कहूंगा कि वो अच्छा भी था समवेयर, मतलब उस सेंस में नहीं कि सबको हो गया, बट इस सेंस में कि हम चारों आसपास बैठ पा रहे थे, हम बात कर पा रहे थे। Right, right, Samarth. Okay, so Sanya, what about you? So basically in January मेरे डैड का प्रमोशन हुआ था and he was posted in Kolkata. So since January it was like वो एक महीने वहाँ रहते थे, एक हफ्ते वो दिल्ली में रहते थे. When he used to be in Delhi, we also used to take the precaution. We didn't used to go out or anything. But in April he came back. My elder brother also had gone with him this time. So when they came back this time, they both were not feeling very well, and like they came back on 5th, and we realized by 6th that they both had prominent fever, and the fever was around 102 or something. So we realized, like me and my mother, we both realized कि इनको कोरोना है. तो we उस टाइम तक हमने उन्हें तो आइसोलेट कर दिया था, दोनों को अलग अलग रूम में कर दिया था. एंड मैंने और मेरी मम्मी ने भी डिसाइड किया था कि हम भी बाहर नहीं जाएंगे, बिकॉज वी डोंट नो इफ वी आर ऑल्सो इन्फेक्टेड बाय इट और नॉट. वी ट्राई टू बुक द टेस्ट, बट टेस्ट वॉज लाइक बहुत डिले कर रहे थे वो लोग कि वो 2-3 दिन बाद आएंगे टेस्ट लेने. Luckily, मेरे चाचा, he is a doctor, so somehow he arranged somebody to come at our place and take the test. So we had our test that way. So initially the plan was कि only my brother and my dad they'll get tested, but I was like, Mummy, all we should also get tested. So when my test had been done, I came back to my room and there is this lotion that I apply on my face. I was going to do that thing. Well, I did that thing, but there is this smell that used to come out of that lotion. But when I applied it, I realized that okay, the smell that normally comes out of it, I cannot sense it. Like my sense of smell is gone. So at that time, I realized, okay, I am also COVID positive, and I secluded myself and isolated myself. Yeah. Okay, that's great कि आपने like at that time only you decided that. So that's great, Sanya. So over to you, Yukti. So, like, I want to know that what was the first thought when you received the report, Samar? अब मेरे को जब जैसे इतने सिम्टम्स थे ही तो काइंड ऑफ आइडिया था कि कोविड है ही, तो इतना बड़ा ऐसा शॉक नहीं था कि यार पॉजिटिव आ गया, मतलब बहुत ज्यादा वैसी चीजें। ऑब्वियसली इट वाज कंसर्निंग कि न्यूज वगैरह में हर जगह उस टाइम तक ये शुरू हो गया था ये चीज आना कि इट इज गेटिंग सीरियस एंड एवरीबॉडी इज गेटिंग इश्यूज एंड एवरीथिंग। तो ऑब्वियसली इट वाज अ सीरियस थिंग, बट इट वाज नॉट अ शॉक फॉर मी because I already had some somewhat idea in my mind ki this is like we have COVID. And Sanya, you? it's it's like very devastating to know that you are suffering from something from which many people are dying out there. So it was not very difficult, I'll say, but yeah, it took me a while to realize, okay, I'm also COVID positive, because I did not show as many symptoms as my brother and dad showed. So I was like, okay, I may be on the asymptomatic side of the disease, and they might be suffering from the symptomatic side. So I was asymptomatic gets treated really early and it's not that difficult. But I was really worried for my dad and my brother because they showed symptoms very aggressively. Okay, so like you told that you were asymptomatic, whereas from like Samar told that he was symptomatic. So is there any difference in treatment? Like, No, there is as such, I don't think so. There is any difference in the symptoms or the treatment, but the only difference over here is that the person who is suffering from asymptomatic, it's not very easy to get detected because you don't show any symptom and you just go out there and do everything that you normally do. You become a carrier in a certain sense. Like if I had not realized that I have lost my sense of smell, I would be doing everything that I would have done. I may go out and everything like that. So it gets difficult at that point. बाकी उसके अलावा there is no such difference in treatment. वो 5 दिन की दवाई आपको खानी ही पड़ेगी. Yeah, that is the only thing ki you take like my sister was asymptomatic in her house. She took medicines only for 3 days, I would say. She took medicines only for 3 days, and in that sense ki we had fever.
तो फीवर वाली चीज वो प्रोलॉन्ग रहती है, जितना टाइम फीवर रहेगा आपको वो मेडिकेशन लेनी ही पड़ेगी। अगर मेनली कोविड का कोर्स जैसे सान्या ने बताया, इट्स ओनली फॉर 5 days, नॉट मोर देन दैट। सो एसिम्टोमेटिक में मेरे अकॉर्डिंग, लाइक मेरे सिस्टर जिस तरह से उसने डील करा था, शी डिडंट हैड टू टेक मेडिसिन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके समर्थ, मतलब पता चला आपके सिम्टम्स के बारे में। एंड अब मतलब कि एसिम्टोमेटिक तो जैसे सान्या ने बताया कि एक तरह से कैरियर की तरह एक्ट करता है एंड उससे मास स्प्रेड होता है। सिम्टम्स होते हैं तो वी गेट टू नो एट अर्ली स्टेज। सो मतलब कि जब आपको मतलब हुआ था कोविड और सब कुछ था, तो मतलब कि फैमिली में जब सिम्टम्स बढ़ रहे थे तो ऐसा लगा कभी आपको कि आपको हॉस्पिटल की नीड है, ऑक्सीजन सिलेंडर, तो इन सब चीज़ों की नीड है? ये चीज हाँ हुई थी, लाइक मेरे लिए नहीं था, इट वॉज फॉर माई फादर। लाइक ऑन डे 10th आई रिमेम्बर कि ऑन डे 10th ही फेल्ट like nauseous and he felt some breathing issues। मैं अगर थोड़ा डिस्क्राइब करूँ इस इंसिडेंट्स को, वो ऐसे हुआ था, मैं मतलब लाइक ऐसे होता है कि मम्मी पापा नीचे सोते हैं, मैं और रेनी ऊपर सोते हैं। तो सुबह 5:30-6 बजे अराउंड माय मदर केम अपस्टेयर्स and like woke me up and said come downstairs and like your father is not feeling well। तो आई वॉज लाइक ऑब्वियसली सुबह सुबह सोते से ऐसे उठा के बोल रहे थे, तो आई ऑब्वियसली फेल्ट लाइक स्केयर्ड एट दैट मोमेंट कि क्या हुआ, क्या इमरजेंसी। एंड मैं जल्दी से भाग के गया था नीचे। तो जैसे ही उन्होंने बोला, लाइक हिज ऑक्सीजन वाज एट 90 एट दैट मोमेंट। हिज ऑक्सीजन वाज एट 90 एंड माय ब्रदर इज इन जीटीबी नगर हॉस्पिटल, ही इज प्रैक्टिसिंग मेडिसिन। तो वी वर इन ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद हिम। So the thing that I was shocked to know from a doctor from that reputed hospital, that he was saying कि जो ट्रीटमेंट आपको घर पे मिलेगा ना, वो हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा। तो इट वाज समथिंग डिस्टर्बिंग टू नो कि उनके उनके मुंह से ये बात सुनना, आउट ऑफ डॉक्टर्स माउथ, कि आप हॉस्पिटल मत आओ, आप घर पे ही रहो, आपका घर पे ज्यादा बेटर ट्रीटमेंट होगा। देन पापा ने बोला कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़ो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कंसल्ट करो। आई कंसल्टेड मेनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स लाइक फोर्टिस, मैक्स, Phantom, and many more, like around 5 to 6 hospitals. I called for them. First I checked on like Google कि उसमें मेरे को ये लिस्ट बेसिकली उसमें था कि बेड्स कितने अवेलेबल है। उस लिस्ट से मैंने चेक करा था। लेकिन उसमें जितने भी बेड शो हो रहे थे, मैंने जितने कॉल्स करे, ऑल द हॉस्पिटल्स वर फुल। इवन फोर्टिस, मैक्स, इवन द स्टाफ ऑफ फोर्टिस वाज सो रूड। और उस टाइम मेरे को इतना गुस्सा आया था बात करते टाइम, मैंने उसको सुनाया भी बहुत था कि भाई तेरे से बात कर रहा है कोई इंसान, एटलीस्ट रिस्पॉन्ड इन अ जेंटल वे कि यार बात तो ढंग से बता कि नहीं है बेड तो मना कर दे। व्हाट आर यू सेइंग कि मतलब तुम ऐसे बात कर रहे हो। तो वो चीज मेरे को बहुत रूड भी लगी थी। बट एट दैट मोमेंट की बहुत क्राउड था, वो भी वो अब उनका इरिटेट होना भी समवट चलो समझ में आता है, वो चीज भी ठीक है। तो आई कॉल्ड 5-6 हॉस्पिटल, दे ऑल वर सेइंग कि बेड्स अवेलेबल नहीं है, आपको ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाएगी एंड देयर आर सम टेंट्स आउटसाइड कि जहाँ पे आप वेटिंग एरिया में वेट कर सकते हो अगर आपके पेशेंट की सिचुएशन क्रिटिकल नहीं है। उनका कहना ये था। तो बट मेरा ब्रदर ने सजेस्ट कर दिया था कि आप हॉस्पिटल मत लेकर जाओ। Then there was one more hospital, Maharaja Agrasen hospital. In that hospital, my father had a friend in the management. तो उन्होंने हमें सेम चीज सजेस्ट करी थी कि डोंट कि आप ये मत सोचो कि हॉस्पिटल आके आप ठीक हो गए, क्योंकि हॉस्पिटल में जो स्टाफ है ना, द स्टाफ इज हैविंग 25 पीपल ऑन वन एट दिस मोमेंट। देर आर 25 लोगों का ध्यान एक ही जने को रखना है, उसको मेडिसिन भी उसी को देनी है, खाना भी उसी को देना, एंड उसी और की नीड हो रही है तो वो भी उसी को ही करना है। तो आपकी केयर जितनी ज्यादा घर पे हो सकती है वो और कहीं नहीं हो सकती। तो मैंने फिर उसके बाद मैंने ट्राई करा ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड एवरीथिंग ट्राई करने का। तो आई गॉट द ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फॉर अ व्हाइल। माय ब्रदर सजेस्टेड कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले लो, रेंट पे था वो, इट वाज ऑन रेंट। तो हमने वो मंगाया था, बट पापा को फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद जरूरत पड़ी नहीं। लाइक इट वाज जस्ट अ फेज, इट वाज जस्ट अ स्मॉल फेज कि उनको ये प्रॉब्लम हुई, ब्रीदिंग इश्यूज हुए। वो सिर्फ थोड़े से स्पैन ऑफ टाइम का था। बाकी एज सच और किसी को ऐसा नहीं हुआ कि हमें हॉस्पिटल जाना ही पड़े या एडमिट होना पड़े, टच वुड।
सो ये तो सही था समर्थ, मतलब कि इतने डिफिकल्टी नहीं आई, बिकॉज सबका मेंटल स्टेट इस वक्त बहुत खराब हुआ है, लाइक बी इट डॉक्टर, बी इट द कोविड फाइटर, द लाइक स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल। सो वो इश्यूज काफी आ रहे हैं। सान्या, आपके ऐसे घर में कोई ऐसा सिचुएशन आया हो? बेसिकली माय डैड, उनकी थोड़ी तबीयत खराब हुई थी इनिशियल डेज में, बट हमने जितने लोगों से कंसल्ट किया था और द डॉक्टर, लाइक मेरे चाचा जो मेरे पापा को बार बार जो उनके डॉक्टर थे, ही ऑल्सो सजेस्टेड व्हाट समर सेड बिफोर कि you get treated very nicely when you are at your home, and it's better to just stay isolated at your home and do the treatment, क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे ना, बाहर इट्स अ वॉर, यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग आउट देयर। आप किसी हॉस्पिटल में भी अगर आप लेके जाओगे, यू वोंट नो द इन्फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड विद योर पेशेंट, कि आपके तो वो फैमिली मेंबर हैं, बट वो डॉक्टर के लिए एक पेशेंट है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आके देगा कि क्या हो रहा है उनके साथ, उनको उनके इंजेक्शन या ऑक्सीजन या जो भी चीज़ है वो टाइम टू टाइम मिल रही है या नहीं। लकीली आई से हमें हॉस्पिटल की दिक्कत नहीं थी, बिकॉज माई अंकल ही ओन्स अ हॉस्पिटल, सो वी हैड नो प्रॉब्लम इन दैट पार्ट। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी मच सजेस्टेड टू अस बाई एवरीबडी कि आप घर पे रहो और घर पे ट्रीटमेंट करो। ओके, राइट सान्या। सो लाइक आई वांट टू नो कि मतलब ऐसा, मतलब क्या ऐसा फेज आया जब आपने ऐसे मतलब सोचा कि नहीं बस इससे लड़ना है अब? सो लाइक व्हाट वाज दैट पॉजिटिव लाइट, समर? पॉजिटिव लाइट एज इन अगर आप देखो तो मेरे लिए यही था यार कि मैं आई वॉज नॉट एबल टू लाइक डू मच और बाय माई सेल्फ ऑल्सो। आई वॉज वेरी वीक फॉर माई फैमिली। मैं मतलब मेन सबसे ज्यादा देखो मेरे को ना जो मोटिवेशन सॉर्ट ऑफ कहोगे इस टाइम में मिली मेरे को अपनी मदर से मिली। शी हैड फीवर थ्रू आउट दैट टाइम फॉर 10 जितना भी टाइम था उनको फीवर था। एंड शी वॉज कुकिंग फॉर अस, एंड वो खाना हम खा भी नहीं पाते थे। लाइक जो खाना वगैरह था वो हम खा भी नहीं पाते थे। एंड शी ऑब्वियसली शी यूज्ड टू गेट इरिटेटेड आउट ऑफ दैट कि यार मैं मतलब मेरी भी तबीयत खराब है और मैं खाना भी बना रही हूँ तुम्हारे लिए और वो तुम नहीं खा रहे हो। तो वो उनको भी अजीब लगता था कि यार मैंने ये सब बनाया है। लेकिन वो उस टाइम पे हमसे भी नहीं खाया जाता था, लेकिन उस टाइम जो वो जितनी मेहनत वो कर रहे थे वो देख के सॉर्ट ऑफ अंदर से लगता था कि यार मतलब ये भी तो कर ही रहे हैं तो हम भी थोड़ा अपने आप को सही रखते हैं, बातें करते हैं आपस में। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, आई फाउंड दैट अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर अस कि हम चारों को हुआ कि अगर हमें अलग अलग बंद नहीं होना पड़ा। वी यूज टू सिट टुगेदर, वी यूज टू टॉक अ लॉट। हम लोग मजाक भी उड़ाते थे, आपस में छेड़ते भी थे कि तुमसे कोविड आया है, तुमसे कोविड आया है कि यू आर द रीजन, इस वजह से हुआ है। तो ये चीजें हम करते थे। तो वी यूज टू प्ले कार्ड्स, हमने कार्ड्स काफी खेले हैं। टीवी सीरीज बैठ के सबने, क्योंकि कोई कुछ भी नहीं कर पाता था जेन्युइनली बताऊं, सब बैठ के वहां पे रूम में सोफा पे पड़े हुए हैं, बेड गद्दा डाल लिया है, बेड पे लेटे हुए हैं, सब आसपास इधर उधर लेटे रहते थे और बातें करते रहते थे इस टाइम पे। तो आई फाउंड दैट समवेयर एज अ पॉजिटिव थिंग फॉर अस कि हमें उतना ज्यादा ऐसे डिप्रेसिंग सिचुएशन नहीं लगी। एंड सान्या, आपके टाइम पे? So basically, I'm the youngest in my family. So I always have this role that I have to be, the bubbly, chubbly one, and I have to, go around everybody's room and be stupid and dumb and do everything. So basically, my बड़ा भाई और मेरे पापा, हम तीनों को हुआ था, तो हम तीनों तो एक एक कमरे में थे, पर माय मदर वो हॉल में रहती थी ऑल द टाइम, and she was very frustrated. Like, I realized at that time that how difficult it must have been for her. So because of that, I had to bring that inside myself that okay, Sanya, you need to get well, because if you will be well, then you will go around, hop around various rooms, and you will, distribute your energy to them. So that was expected of me, and that's what made me realize कि अच्छा ठीक है Sanya, you need to get well. The blame game was also done in my house, that we all used to blame each other, okay, because Samarth and I, we are from the same group. So when Samarth tested positive, I told everybody at my house, and they were like, okay, Sanya, you are the one who's going to bring COVID in our place. So it's your responsibility. So blame game was very much done in our house, but it was basically my mother who motivated me, because it was very difficult for her. She had three patients actually to tend to, and everybody had their own choice. Like my dad, he had lost his appetite, वो कुछ नहीं खाते थे। माय भाई, उसका बीच बीच में होता था, कभी बहुत ज्यादा होता था उसका कि कभी बिल्कुल नहीं होता था।
मैं एकदम नॉर्मल कि अच्छा मेरे को जो चुपचाप दे दोगे मैं चुपचाप खा के सो जाऊंगी, मैं और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो इट वाज बेसिकली माय मदर। और व्हेन यू गेट बेटर ना तो फिर यू रियलाइज कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे घर में भी सब ठीक हो जाएंगे, यू डू सी दैट होप। सो इट वाज दैट आई गेस। चलो अच्छी बात है, दोनों फटाफट ठीक हो गए। सो अभी जैसे सान्या ने बात करी अबाउट द स्लीप एंड एवरीथिंग, तो स्लीप से आई वुड लाइक टू नो कि जैसे मेडिसिन आप काफ़ी लेते होंगे एंड समर्थ को भी काफ़ी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी, फैमिली मेम्बर्स को भी बाकी। तो मेडिसिन से क्या, जैसे कहते हैं कि कोविड में पूरे दिन लोग वीकनेस रहती है, पूरे दिन सोते रहते हैं, तो ऐसा कुछ था? और तुम्हारी जैसे डाइट पे कोई, जैसे सान्या ने बताया, समर्थ, ऐसा कुछ आपकी फैमिली में आपको कोई ऐसे डाइट पे कोई डिफरेंस हुआ या फिर ऐसे कुछ इश्यूज हुए या कुछ था? See, medicines are genuinely very heavy. The doses are very heavy doses for the initial days. For first few days, it was I used to be in a hangover. You can say that. I was asleep most of the time. I was asleep. I used to get up only to eat something or like खाने का भी मेरा ऐसा होता था. मेरे साथ एक issue और था. I had ulcers in my throat also at that time. तो आई वॉज नॉट एबल टू च्यू थिंग्स लाइक मतलब मैं रोटी नहीं खा सकता था उस टाइम पे, मैं ब्रेड नहीं खा सकता था. आई हैड टू टेक द लिक्विड डाइट मेजरली. और खाने का उस टाइम अंदर से बिल्कुल भी मन नहीं करता है. जो मेडिसिन हैं वो मतलब ऐसे आपको इतना डिजी हो जाता है, इतना वीक लगने लगता है अंदर से, यू डोंट लाइक अंदर से इच्छा नहीं होती बिल्कुल भी कि यू वांट टू ईट समथिंग. मम्मी जबरदस्ती मेरे को पता नहीं अलग अलग चीजें बना के देती थी, लाइक दाल का पानी एंड stuff. So I used to drink that, and if I majorly say that, I don't remember the initial 4 days. और मैं सही में genuinely मैं hangover में ही होता था. मतलब बिल्कुल वो जो दवाइयाँ हैं वो उस हिसाब से वो दे यूज टू. और फीवर मेरे को इतना ज्यादा था, बॉडी में वीकनेस इतनी थी, लाइक 103. लाइक अगर मैं आपको बताऊंगा, देयर वाज अ इंसिडेंस ऑन डे 4th आई गेस. आई वेंट टू वॉशरूम एंड आई फेंटेड. आई मम्मी घर पे वहीं पे थे, उसी फ्लोर पे थे, एंड आई फेंटेड. आई वाज आई वाज नॉट इन माय सेंसेस फॉर 15-20 minutes. शी थॉट समथिंग हैपेंड, शी वेंट आउट, उन्होंने चेक करा, सब चेक करा, लेकिन उनको ऐसे रियलाइज नहीं हुआ कि वॉशरूम से आवाज आई है, कुछ हुआ है. And for me, that time was around 50 minutes or 1 hour. I felt like I was there a blank, or I slept like for 1 hour and 50 minutes. And after 15-20 minutes, I came into a bit senses and woke up, came out, and took my temperature. At that time, I was like burning. At that time, I had 103.5 fever at that moment. And she rushed and bought those water putties and everything मेरे माथे पे रखा, and ये सब दवाई दी जल्दी से. तो उसके बाद तो मैं और ज्यादा वीक हो गया था, सही बताऊं. आई फेल्ट अंदर से, और एक वो जो फीलिंग आती है ना, अब एक बार फेंट हुआ था, मैं जब भी वॉशरूम जाता था तो मेरे को अंदर से दिमाग में वो रहता था कि कहीं मैं दोबारा फेंट ना हो जाऊं. I didn't used to like lock the door after that incident for a few days. कि आई वोंट लॉक द डोर, कि बाई चांस कुछ ऐसा होता है तो दे विल बी देयर कि कुछ देख लेंगे. तो दैट वाज अ बिट डिस्टर्बिंग. एंड डाइट का तो यार देख, डाइट का तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी. खाना मैंने पर्सनली 6 kgs लूज करा है, मेरे फादर ने 8 kgs वेट लूज करा है इसी टाइम में. तो या, डाइट वाज इशू. ओके समर्थ एंड सान्या, लाइक आपका मेडिसिन का डोसेज और वो सारी चीजें कैसी रहती है? तो बेसिकली मैं उस कैटेगरी ऑफ पीपल को बिलोंग करती हूँ जो कभी बीमार नहीं पड़ते थे. माई इम्यूनिटी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो आई डोंट गेट सिक दैट ऑफनली. और मैं कभी दवाई पे, मैंने किसी भी चीज़ के लिए कभी दवाई नहीं खाई है. मैं अगर मेरे को बचपन में भी फीवर होता था तो मेरे पेरेंट्स मेरे को होम्योपैथी वाली दवाई प्रेफर करवाते थे रादर देन द नॉर्मल मेडिसिन. सो व्हेन आई हैड, मतलब जब मेरे हाथ में वो मेरी प्रिस्क्रिप्शन आई जिसमें लाइक देयर वर 7 to 8 टैबलेट्स ऑफ ईच टाइम, लाइक सुबह दिन और शाम की 7 7 7 6 6 टैबलेट आती थी ना, तो आई वाज लाइक कि मैं इतनी दवाई कैसे खाऊंगी, क्योंकि मुझे तो वो घोटने वाली आदत, वो चबाने वाली कुछ भी नहीं था मेरे को. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट. लाइक मेरे से तो, मेरे को ऐसा लगता है कि दवाई से, मतलब कोरोना से ज़्यादा डिफिकल्ट तो मेरे लिए दवाई खाना था, क्योंकि वो सारी की सारी दवाइयाँ 650 mg 750 mg इतनी उसकी थी. तो वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर टोल लेते हैं. यू जस्ट स्लीप. तो देयर वर डेज कि मैं सिर्फ पूरे दिन सोती थी, माय फोन वाज इन एयरप्लेन मोड और मैं सिर्फ सोती थी कि इट्स ओके आई विल जस्ट स्लीप. बट हाँ,
मेरी मम्मी उस टाइम पे एकदम ज़बरदस्ती आती थी हम लोगों के कमरे में, एंड शी यूज्ड टू प्रोवाइड अस कि इतना खाना तुम्हें खाना पड़ेगा, ये प्लेट तुम अपने पास रखो, तुम 1 घंटे बाद दो मेरे को प्लेट, तुम 2 घंटे बाद दो, बट इतना खाना अगर मैं लेके आई हूँ, हमारे वी से दिस थिंग कि परोसा हुआ खाना पूरा खाते, खत्म नहीं, मतलब छोड़ते नहीं है थाली में, तो वो वाली चीज़ थी कि वो ला के देती थी और इतना खत्म करो, तो वो ज़बरदस्ती वाली चीज़ से हमें खाना पड़ता था। तो ऐसे डाइट पर कम हो जाती है, मेरे खुद के भाई 2 किलो कम हो गए थे, तो इट वाज लाइक कि तुम्हें भूख बिल्कुल भी नहीं लगती और तुम सिर्फ सोते हो। जैसे आपने बताया, तो फिर मम्मा सारा काम करती थी और मम्मा जैसे अलग थोड़ा रहती थी, बट ऐसा तो कोई ऐसे टाइम नहीं था, मम्मा को तो ऐसे कुछ सिम्टम्स नहीं आए थे? नहीं, बिकॉज वी यूज टू वेयर आर मास्क एवरी टाइम, हमारे पास सबके इंडिविजुअल ग्लव्स ग्लव्स थे, एंड वी इवन सेपरेटेड द वॉशरूम, दैट वील यूज अ डिफरेंट वॉशरूम एंड माई मदर विल यूज अ डिफरेंट वन. We used to make sure that she does not come in our room. Even we used to clean our own room. My mother has this OCD for cleaning. Ki she'll clean every little corner of the house. But for 14 days, it took a toll on her mental health. She was like, I cannot live in this gandagi. Please do something. So we had to do something on our own. But we used to make sure that if she used to touch our water bottles also, na, we all had our own sanitizer, spraying wala. So we used to spray it all on her also, on ourselves also, and on the bottle also. So every time we took this measure, that's why she did not, thank God she did not contact the virus. तो सान्या, जैसे आपने बोला प्रिकॉशंस लिए, तो मतलब और क्या क्या प्रिकॉशंस आप दोनों की फैमिलीज ने और आपने सबने लिए, कि ताकि जिनको नहीं हुआ, जैसे सम्मत के घर में तो सबको ही हुआ, तो बट आपके घर में जैसे आपने बोला कि आपकी मम्मा को नहीं था कोविड, तो आपने और क्या क्या ऐसे प्रिकॉशंस लिए कि जिनसे मतलब आगे ट्रांसफर ना हो उनको? So basically, we used to wash our own clothes also. Every day, the bed sheet that we slept on the sheet that हम जो ओढ़ के सोए थे, and the clothes that we used to wear, we every day we used to wash them by ourselves only. We used to put them out by ourselves. हमने सब अपने आप किया. We differentiate. Like my mother hated that thing because she knew the members in her family were sick, and मम्मियों का तो होता ही, अगर कोई बीमार है तो मैं उसको जितना प्यार कर सकूँ उतना करूँगी ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर एज वेल, उस डिफिकल्टी की वजह से आई रियलाइज, अच्छा ठीक है सामने तेरे को ठीक होना पड़ेगा. तो ये सारे प्रिकॉशंस थे. हम चारों बाहर नहीं जाते थे, चाहे मम्मी ठीक भी थी. वी यूज टू मेक श्योर हमारी दवाइयाँ, हमारी ग्रॉसरी सब हमारे घर डिलीवर हो. हम किसी को आने नहीं देते थे ना, हम चारों से कोई भी घर के बाहर नहीं जाता था. एंड वी एज वी वर क्वारंटीन इन आवर ओन रूम, हमारी कोई भी रिक्वायरमेंट होती थी हम रूम के बाहर नहीं जाते थे. वी हैव दिस व्हाट्सएप ग्रुप हमारे चारों का, तो उस पर वी यूज टू मेंशन, अच्छा वी नीड दिस थिंग, तो मम्मी ला के दे देती थी. और फिर जब मैं थोड़ी ठीक होगी, देन आई यूज टू रोम अराउंड, मतलब एंड इफ आई यूज टू गो आउट ऑफ माई रूम ऑल्सो, आई यूज टू मेक श्योर कि मेरा जो सैनिटाइजर है वो मेरे हाथ में, और मैं उसको पूरे घर में छिड़कते हुए जाती थी. लाइक इट वॉज अ फन गेम ऑल्सो फॉर मी कि चलो सैनिटाइजर छिड़कते हैं घर में. सो समर्थ, जैसे हम बात कर रहे थे, अभी सान्या ने बताया कि सारे प्रिकॉशंस लिए थे, तो अब ये भी क्वेश्चन था मेरे माइंड में कि जैसे प्रिकॉशंस इंटरनली तो घर में सबने ले लिए, अब बाहर से कुछ सामान मंगाना है, राशन, मिल्क और एनीथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स था, बट आपने क्या प्रेफर किया और उस टाइम पे भी कैसे कैसे चीजें आपने मेजर्स और स्टेप्स लिए थे? लाइक हम तो सभी बीमार थे, तो हम तो जाने का तो कोई सीन बनता भी नहीं है, और कोविड पॉजिटिव थे तो ऑब्वियसली स्प्रेड होने का चांसेस बहुत ऑब्वियसली बढ़ ही जाते हैं, तो हम लोग घर पे ही थे. बट इन द इनिशियल डेज वी यूज्ड टू ऑर्डर फ्रॉम ग्रोफर्स. हमने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और घर का सारा सामान बेसिकली ग्रोफर से ही आता था. फिर उसके बाद धीरे धीरे करके द नियर बाय किराना स्टोर दैट वाज नोन टू अस, ही यूज्ड टू कम टू डिलीवर फॉर मिल्क एंड स्टफ. Like he used to come to deliver to the nearby houses. So one day my mother saw him from the balcony, so she contacted him, she took his number and everything. From after that day till now, he is delivering everything to our house, be it anything. And for vegetables and everything, the like my neighbors are very helping us out. Like basically वो जो भी कुछ चाहिए होता है हमसे पूछ लेते हैं, and they buy the stuff and we pay them in Paytm. पेटीएम से ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि वो कैश से भी वो चांसेस ना हो. लाइक अभी 15-20 डेज तक हमने यही प्रैक्टिस
कंटिन्यू करी थी कि किसी को ट्रांसफर ना हो। ऑफिस तो पापा का ऑफिस तो जाते ही नहीं थे ऑब्वियसली, जो काम था वो सब लाइक जो थे लेबर है जो वो करती थी वहां पर। खुद का बाहर का कांटेक्ट एक तरह से बिल्कुल बंद था। एंड सान्या, आपके केस में मतलब कैसे करा था आपने सबने मैनेज वो सारी चीजें? बेसिकली इन डिफिकल्ट टाइम्स में देयर इज दिस वन थिंग दैट आई रियलाइज्ड कि एक इंडियन औरत के कॉन्टैक्ट्स बहुत हो सकते हैं। लाइक माय मदर मेड श्योर that even Nariyal Pani was delivered to our door and nobody had to step out. Everything, she had so many contacts all over the world, I guess, that she made sure everything was delivered and we paid for that like by Paytm only. We don't now believe in paying in cash because it's like totally you can transfer the thing from cash also. So my mother, she made sure everything was delivered to our home, and the guy used to leave it on our door. He didn't even used to ring the bell. Everybody, we informed the people around us that okay, we are suffering from corona, so make sure that nobody is around our place. Our neighbors were also very helpful. They were like, if you want something from us, you can totally ask us and we'll get that thing for you. But my mom's contacts were everything that we needed actually. She did it on her own, I guess. सो दैट्स रियली ग्रेट। सो मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि शायद कोविड की वजह से डिजिटल इंडिया और पेटीएम एंड एवरीथिंग इज प्रमोटिंग डे बाय डे, तो कैशलेस इंडिया हो रहा है थोड़ा। प्लस लाइक अगर हम True. बिजनेस की भी बात करें तो बिजनेस में भी आजकल कैश ट्रांजैक्शंस कम हो रही है, बैंक ट्रांसफर्स, एनईएफटी एंड एवरीथिंग इज लाइक एग्जैक्टली। कमिंग अप। पिछले 15-20 दिन से पापा का काम ऐसे ही चल रहा है, कैश तो बिल्कुल ऑब्वियसली जा ही नहीं रहा है। तो लाइक मेरे को एक और क्वेश्चन आया कि ऐसा मतलब कोई भी मोमेंट था व्हेन ईदर ऑफ यू और बोथ ऑफ यू हैड अ ब्रेकडाउन? Breakdown as in I told you about that day, right? When my mother took me and got me up and asked me to like call the hospitals and everything. I couldn't see him, man. Like he was so weak at that moment. I literally cried. I went to the other room and cried. Like I had that thing. Matlab, he was very vulnerable at that moment. I was scared. I was scared to the core, and maybe that's why I shouted at that guy on phone also. And he was talking in his own normal sense. I felt it bad that I need the thing, and you are talking that way. And so yeah, I had at that moment I had that feeling, but at the same time I realized कि I have to be strong at that moment क्योंकि और कोई है नहीं अभी इस टाइम पे घर पे जो ये चीजें अभी डील करे। बाई चांस टचवुड ऐसा कुछ नहीं हुआ, बाई चांस अगर हॉस्पिटल जाने का कुछ होता है आई एम बीइंग द like I am not being that strong enough, so I would have been problem for a family than a like हेल्थ से ज्यादा प्रॉब्लम बन जाता मैं खुद ही। Yeah, at that moment was a breaking point for me, you can say that. सान्या, तो आपके ऐसा कोई मोमेंट हुआ हो? So basically, my elder brother and I, we have this weird relationship. He can irritate anybody at any time of the day, and he irritates me the most. So even now also, he's standing there making weird faces. So I just laugh and ruin this whole thing. So it was seeing him and my dad because there is not a moment we share. मतलब हमारे रूम में आसपास ही, तो एवरी टाइम यू सी दैट इंस्टाग्राम रील की वो तुम्हारे रूम में आके लाइट बंद करके चला जाएगा तुम्हारा भाई, वो एकदम बॉर्डर पे खड़े होके बोलेगा कि मैं तो तेरे रूम में नहीं खड़ा हूँ, या वो इरिटेट। तो ही यूज टू डू दैट थिंग, बट बिकॉज ऑफ द आइसोलेशन we were both separated and he was very sick. Like he used to, because they had the symptomatic one, so they both were very sick and they both used to just lie on the bed, and all the time they had that oximeter to check out their oxygen and heartbeat. So it was like very devastating for me, and it also used to hit me at night. It's, I believe it's not the corona that hits you, it's the isolation, that you can have nobody around you. It's a deadly disease, obviously it is, but the feeling of not having somebody to lean on, it's very difficult. You just cannot get out of that phase. You are like, okay, you are all alone. You cannot even have your own mother by your side when you are suffering from such a disease. Because my mother was not positive, so she used to be staying away, and she used to yearn for the feeling ki okay, she can just touch her kids and her husband. So it was very difficult to see those moments, and you break down every time. When you realize those things, that everything that you were doing every day is now a luxury.
It's not an earlier you used to do that, अरे ठीक है ये तो बड़ा normal है. But now it's a luxury that I cannot even afford to touch my own elder brother when he's just, sharing a wall with me. We cannot do that because the disease is as such. So yeah, there were some moments like that, but we got through, I guess. As you mentioned about this thing, oximeter and thermometer, तो oximeter जैसे था आपके पास, so oximeter और thermometer का लाइक अभी काफी तरह के मॉडल्स आ रहे हैं, काफी अलग अलग कंपनीज के आ रहे हैं. सो उस टाइम पे जैसे कि काफी बार होता है कि ऑक्सीमीटर गलत भी दिखाता है एंड काफी इश्यूज होते हैं, तो ऐसा कोई इश्यूज हमारे तो सामने तुम्हारे केस में ऐसा कुछ हुआ? ये ऑक्सीमीटर में ना थोड़ी फ्लक्चुएटिंग रीडिंग्स आती हैं. ये चीज मैंने अपने ब्रदर से भी कंसल्ट करी थी, जो डॉक्टर है. तो ही सेड दैट कि समटाइम्स देयर आर फ्लक्चुएटिंग रीडिंग्स, दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक द रीडिंग्स फ्रीक्वेंटली. इफ यू समहाउ गॉट अ रीडिंग, लाइक मेरी खुद की 86 आई थी एक बार, एंड एज द गाइडलाइन इज कि 90 से कम होती है तो यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड इट इज अ सीरियस थिंग. तो जब मेरी आई 86, तो मैंने पूछा था उनसे, भैया से, तो कहते हो आप रेगुलरली लो. समटाइम्स इट हैपेंस कि आपने कुछ एक्सरसाइज करी है या फिर आप ज्यादा चले हो, उसके बाद योर लंग्स गेट अ बिट मोर चार्ज्ड अप. तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि आपकी वो जो ऑक्सीमीटर की रीडिंग है वो कम आती है. अगर आप पर्सनली भी ट्राई करोगे, अगर आपको कोई इश्यू है, आप सीढ़ियां 4 बार ऊपर नीचे चढ़ो एंड ऑक्सीमीटर की रीडिंग लो, यू विल फाइंड कि थोड़ा सा कम आएगा उस टाइम पे. तो इस चीज को लेकर उनका यही कंसर्न था कि आप रेगुलरली लो उसको. आप एक बार की रीडिंग पे एकदम पैनिक मत करो. अगर आप उस टाइम पैनिक कर जाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है. आप रेगुलरली लो. अगर रेगुलरली कम होता है तो यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल और एनी अदर रिसोर्स, यू हैव टू अरेंज द ऑक्सीजन. कि अगर रेगुलरली इट इज बिलो 90, क्योंकि इसके अंदर जैसे उन्होंने बताया था, इसके अंदर बहुत ग्रेजुअल ड्रॉप आता है. लाइक ग्रेजुअल नहीं बोलना, ग्रेजुअल इज द रॉन्ग वर्ड. बहुत स्टीप ड्रॉप आता है ऑक्सीजन लेवल के अंदर, कि वन डे यू आर 92, 93, 94 एंड द द नेक्स्ट डे यू कैन रीच टू इवन 60. यू वोंट नो. तो या तो मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है ऑक्सीमीटर और ये सारी चीजें. एग्जैक्टली फॉर कोविड पेशेंट्स और एनीबडी राइट नाउ, कि अगर उनको थोड़े से भी सिम्टम्स लगते हैं तो ऑक्सीमीटर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, एंड टेकिंग योर टेम्परेचर टू. राइट. तो सान्या आपके केस में कैसा था, मतलब ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, I इन सब चीजों? I totally agree with what Samad said. It's very important, and when you are home isolated, it's one thing that you have to check at basically regular interval of time. Make sure that you are checking that thing. There was this one time when my oxygen was 88 and my heartbeat was 123, and I was like, okay. I was totally normal. I was not even walking. I was just lying on my bed, and I was like, "Is it my time to go now?" Like, because you do think that thing, and 1 second later, I'm taking it. My oxygen is 99, and my heartbeat is again 110. I was like, okay, so you can. It's a machine at the end of the day. No matter how much you try, you cannot just trust a machine, but you have to do that thing because it brings you a sense of ease to know, okay, this is my oxygen level. If it deteriorates for a very long period of time, then I agree what Samad said that अगर बहुत दिनों तक आपका मतलब 80 या 90 की रेंज में है, then go to a doctor. But 2-3 रीडिंग for your safety measure also आपको लेनी चाहिए. So did doctor suggest any one of you any like yoga thing, meditation, or any other exercise during COVID, family members को या कुछ? For my father, my brother suggested there is a spirometer. You can say that it is an exercise in which it is an instrument आता है. तो उसमें क्या होता है, you have to blow and there are 3 balls. उसके अंदर levels होते हैं. 400, आपने वो भी सुना होगा, सर्जरीज के बाद भी यूज करते हैं. राइट. वो कलरफुल बॉल्स होते हैं जिसके अंदर. कलरफुल बॉल्स. देयर आर 600, हम्म. 400 सीसी, 600 सीसी एंड 1200 सीसी वॉल्यूम लेवल होता है उसके अंदर. तो यू ब्लो दैट, यू बेसिकली सक द एयर इन, एंड वो उसके लेवल राइजेस होते हैं. तो वो एक्सरसाइजेस के लिए बोला था पोस्ट रिकवरी, जब रिकवरी हो गई. जैसे कि लंग्स का जो है सारी चीजें हैं, हाँ, फंक्शनिंग प्रॉपर हो जाए. फंक्शनिंग प्रॉपर हो, कि थोड़ा खुले. लाइक किसी को ऐसा होता है, इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कफ का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है एंड यू हैव ब्रीदिंग इश्यूज एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस. ये भी बोला था उन्होंने कि बहुत ज्यादा नहीं करना है, एकदम स्ट्रेन नहीं देना है बॉडी को.
ग्रेजुअली आप धीरे धीरे करके आप उसको करो। और उन्होंने पापा के लिए बेसिकली वो सजेस्ट करा था, और हमारे लिए उन्होंने बोला था बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस करो, अपनी बॉडी को एक्सर्ट मत करो, क्योंकि अभी रिसेंटली फीवर इतना ज्यादा आया है। यू शुड नॉट कि यार जिम जाते हैं, यार बॉडी बहुत वीक हो गई है, अब खाना पीना शुरू करते हैं और जिम जाना शुरू करते हैं। ये चीज नहीं करनी है कि आप वेट्स उठा रहे हो और ये सब कर रहे हो। आप बेसिक एक्सरसाइजेस कर सकते हो, लाइक स्ट्रेचिंग हो गया एंड एवरीथिंग, जो जो उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा था। we also used to do that, like after 14 days, like हमारी पूरी फैमिली शाम को टेरेस पे जाती थी फॉर अ सिंपल वॉक, कि 14-15 days आई वुड से, कि जब थोड़ा सही हो गए थे, बेसिकली पापा की तबीयत जब ठीक हो गई थी, तो हमने ऊपर जाना शुरू कर दिया था, थोड़ा वॉक करते थे एंड हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करते थे। राइट, दैट्स ग्रेट। अन्य आपके केस में ऐसा कुछ एक्सरसाइज का? वो योगा का अनुलोम विलोम होता है ना, जिसमें हम बहुत सारी ऐसे सांस लेते हैं, वो लेने के लिए बोला था। एंड इट वाज सजेस्टेड कि जैसे मेरे डैड ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हिज क्वारंटीन, तो वो 14 दिन अपने रूम के बाहर ही नहीं निकले थे। ही वाज लाइक इन द रूम। हम चले जाते थे जब हम ठीक हो गए थे, मैं और मेरा भाई, वो बाहर नहीं आते थे। तो ये सजेस्ट किया था कि अगर आप रूम के बाहर नहीं जा रहे हो तो मेक श्योर आपके जो रूम का पेरीमीटर है ना, आप बस उतना चलो फॉर 5 मिनट्स। मेक श्योर दिन में आप उतना पार्ट चलो, क्योंकि यू हैव टू ब्रिंग दैट मोबिलिटी इनसाइड योर बॉडी, वरना आपकी बॉडी रिकवरी में थोड़ा और टाइम लेगी। तो जब तक आप अपने एंड से भी पुश नहीं करो, थोड़ा सा पुश, ये नहीं कि जिम वाली चीज़ भी, बट हाँ थोड़ा सा पुश करना ज़रूरी है बॉडी। तो बस ये था। और ये था कि छत पे चले जाओ और थोड़ी खुली हवा में रहो प्लांट्स वगैरह के साथ, इतना और नहीं। ओके, ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। तो मतलब जैसे आपने बताया कि मतलब आप लिंक में थे डॉक्टर्स के साथ, एंड मैंने देखा है कि आजकल जैसा टाइम चल रहा है, जैसे सेकेंड वेव ऑफ कोविड चल रहा है, तो और बहुत ज्यादा नीड है लोगों को प्लाज्मा की। हर एक जगह व्हाट्सएप स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, एवरीवेयर एक ऐसा मैसेज आता है कि प्लाज्मा चाहिए, प्लाज्मा चाहिए। तो क्या आप दोनों में से किसी में मतलब ऐसा है कोई प्लान प्लाज्मा डोनेशन का? हाँ, प्लाज्मा डोनेशन का आई हैव थिंक अबाउट इट, कि मतलब मैंने सोचा हुआ है कि मैं करूंगा, बट फॉर दैट कि आप जब रिकवर हो जाते हो ना, उसके 25 days बाद ही आप बेसिकली आप डोनेट कर सकते हो प्लाज्मा, जब आपकी रिकवरी हो जाती है। तो अभी उसमें आई गेस मेरे में टाइम इट वुड टेक अराउंड मिड मे तक आई विल गो एंड डोनेट फॉर दैट। आई हैव दैट इन माइंड। दैट्स ग्रेट। एंड सान्या, आपका कोई प्लान है प्लाज्मा डोनेशन का? Same. Because now that I see the news and everything, and it's very depressing to go out on any social media or just watch the news, because you see the number of deaths are so much, and now it's very common. I have heard in my known that so many people are dying. So if I can bring a change in that, so I would love to do that. So I just finished my quarantine on 24th, so it is going to be a month for me to, till I can donate the plasma, but I'm very much ready for it, and I will do it. तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मतलब कोई और क्वेश्चन? आप कोई भी टिप्स या कुछ भी हमारी जो ऑडियंस हमें देख रही है, सुन रही है, उनको देना चाहोगे? देखो, मेरे हिसाब से तो जैसे अभी इस टाइम पे जो सिचुएशन हो रही है, एंड रिसेंटली मेरे जो फ्रेंड्स कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, दे आर पैनिकिंग अ लॉट, कि बट मेरे हिसाब से जो चीज है ये, लाइक 90% पीपल कैन रिकवर एट होम। 90% पीपल रिकवर एट होम एंड विद अ फ्यू स्टेप्स, की आप रेगुलर मेडिकेशन लो एंड यू ट्राई टू टेक द थिंग्स लाइक स्टीम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कि मेरा पर्सनली, मैं अपना देखो बताऊं, मेरी गलती थी, मैंने स्टीम इतनी नहीं ली उस टाइम में, उन 14 days में। तो आई स्टिल हैव कफ, I still have some problem in that. I still have cough, but my other family members used to take steam 3 times a day. My father, my mother, my sister. मेरे से ली नहीं जाती थी, पर्सनली बताऊं तो। वो लोग लेते थे 3 times, लेकिन अब मैं ले रहा हूँ। वो लोग 3 बार लेते थे, तो उनको काफी फर्क पड़ा है इस चीज से। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी को भी होता है या नहीं भी हो रहा है, तो यू शुड स्टार्ट टेकिंग स्टीम। And there are these kadas that we also have here. We are taking a step or two from each of them. So try taking these things to boost your immunity. Like, these things are very much important according to me.
सानिया, आप कोई टिप्स वगैरह देना चाहोगे? Totally agreeing with everything Samarth said. Steam is super important. मैंने ली थी तो सी मुझे कफ नहीं है, समर्थ ने नहीं ली थी. नारियल पानी, ग्लूकॉन डी, एनर्जल, ऐसी चीजें बूस्ट योर electrolytes inside your body. It's very important to stay hydrated in times like these. जब किसी को बहुत ज़्यादा खांसी होती थी, आई डिस्कवर्ड दिस बहुत बाद में, तो ट्राई टू ले ऑन योर स्टमक. इट्स डोंट स्लीप ऑन योर बैक, प्लीज डोंट. इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना, प्लीज डोंट. See your oximeter and thermometer readings regularly. Obviously the situation is as such out there that obviously you will panic. It's no guarantee. It's like now, अब तो ये एज भी नहीं देखा. Anybody can die of this thing. पहले तो ये था कि सिर्फ सीनियर सिटीजन को था. तो पैनिक इज एज सच है, बट फिर वही है कि पैनिक को ओवर पावर मत होने दो. बी रिलैक्स्ड व्हेन यू टेक जजमेंट्स लाइक दीज. घर पे इफ होम आइसोलेशन कैन ट्रीट यू, डोंट बिलीव कि आप अकेले हो. प्लीज अपने आप का ध्यान रखो. अगर आपको पता है कि आपको कोरोना है, आइसोलेट योर सेल्फ. डोंट गो आउट देयर. इट्स लाइक कुछ फायदा नहीं होगा आपके बाहर जाने से. किसी और को अगर आपकी वजह से होगा, बददुआ और मिलेगी. तो इट्स बेटर कि आप घर में रहो, अपने दवाइयाँ खाओ, खाना खाओ. बिल्कुल. और मैंने तो ये भी सुना है, मतलब घरेलू नुस्खे तो बहुत आते हैं इस टाइम पे व्हाट्सएप पे. तो एक घरेलू नुस्खा ये भी सुना था मैंने कि जितनी आप मिर्ची खाओगे ना, उतनी जल्दी आपका कोरोना ठीक होगा. तो हमने तो बहुत स्पाइसी फूड खाया, तो हम तो जल्दी ठीक हो गए. बाकी के लिए इट्स सब्जेक्ट टू रिस्क, बट हाँ, कर सकते हो. करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. और हंसते रहा करो. मतलब इस टाइम में मैंने बहुत सारी टीवी सीरीज फिर से बिंज वॉच कर ली थी, और क्लासेस भी लगाई थी कि मैम कोरोना है मेरे को. तो यू कैन डू मेनी थिंग्स, बट डोंट पैनिक. इट्स वेरी डेडली आउट देयर, एंड वी कैन ऑल गेट थ्रू दिस. थैंक यू. दैट्स ग्रेट सान्या एंड समर्थ. सो मैं एक चीज पे बहुत बिलीव करता हूँ, वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली. सो जब ये अभी वर्ल्ड में, लाइक नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में पैंडमिक का ऐसा सीन है, एंड इंडिया में लाइक कंसिस्टेंटली अब बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, सेकंड वेव है. बाकी कंट्रीज में भी, काफी कंट्रीज में है, इंडिया को काफी कंट्रीज ने बैन भी करा हुआ है अभी, कि लाइक दे आर नॉट अलाउइंग लाइक पीपल फ्रॉम इंडिया टू गो अब्रॉड. सो इस टाइम पे मतलब मैं तो यही चाहता हूँ कि सब लोग मिलके इस पैंडमिक से, इस कोविड से फाइट करें, यूनिटी बना के चले. जैसे आपके नेबर्स, आपने बताया कि इतने हेल्पफुल है, आपके नेबर्स हेल्प कर रहे हैं, आपके फैमिली डॉक्टर्स हेल्प कर रहे हैं, आपके नोन में जो फ्रेंड्स है एंड फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, वो सब हेल्प कर रहे हैं. तो अभी भी जैसे इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया हैंडल्स, इन जगह पे हेल्प चल रही है. तो मैं भी ये कहूंगा कि आपने बोला जैसे प्लाज्मा आप डोनेट करने का प्लान कर रहे हैं, तो प्लाज्मा भी आप मतलब पूरा आइडेंटिफाई करें कि हाँ, प्लाज्मा भी सही जगह जा रहा है कि नहीं. क्योंकि मैं अभी पूरा स्कैम्स पढ़ रहा था, लोग प्लाज्मा ले रहे हैं, बैंक्स में डिपॉजिट करा रहे हैं, बट उसका भी बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है. तो वो सब चीजें माइंड में रख के, सारी चीजें करके प्लाज्मा जरूर डोनेट करें आप अपनी फैमिली मेंबर्स को भी. इफ एवरीवन इज लाइक रिकवर्ड नाउ, एंड सबका अगर सही है, लाइक हेल्थ भी ठीक है, तो रिकवर करें. एंड आप, क्योंकि आप, हमें इस सेशन का मेन मोटो यही है हमारा कि आपसे लोग और मोटिवेट हो, उनको पता चले कोविड क्या है, और मोटिवेट होके वो प्लाज्मा डोनेट करें जिनको कोविड हुआ हुआ है. जिससे कि प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो जल्दी से जल्दी हम इसको, कोविड को फाइट करके, हम इससे सेकेंड वेव से बाहर आके एंड एक नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगी ग्राउंड लेवल पे, पूरे ऑल ओवर इंडिया. इफ यू टॉक अबाउट इंडिया लेवल, लाइक वर्ल्ड लेवल पे भी, अगर सब एक साथ मिलके चलेंगे. इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए कोविड एक्सटेंसिवली बढ़ रहा है, एंड लोग इतने प्रिकॉशन नहीं ले रहे थे बीच में. जैसे हमने भी बात करी, मैं भी खुद कॉलेज जाता था, इधर उधर जाते थे हम इवेंट्स के लिए, एक्टिविटीज के लिए. बट अब इट्स द टाइम टू टेक द प्रिकॉशंस, फैमिली की पूरी लाइक हेल्प वो करना, पूरा टेक केयर करना. तो वो सब चीजें हैं. बहुत इंसाइटफुल सेशन था, मतलब आपसे काफी कुछ पता चला. टच वुड कि अभी हमें, मतलब फैमिली में किसी को नहीं हुआ है, बहुत जॉइंट फैमिली हमारे आसपास ही रहते हैं सब, बट वी आर टेकिंग मेजर्स, प्रिकॉशंस, एंड हमारा काढ़ा तो चलता ही रहेगा. Cheers. Cheers. Thank you so much to Samarth and Sanya for sharing your experience with our listeners. So, are there any last words for us from your side? Well, stay at home, double mask. Even government has issued an guideline कि आप घर में भी मास्क लगाओ. अब ये फैमिली मेंबर्स के साथ भी बैठे हो तो भी मास्क लगाओ. तो ट्राई दैट. एंड अगर किसी को कोविड हो जाता है और फिर उसके बाद भी डोंट थिंक कि आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई हैं तो आप खुला घूम सकते हो, लाइक रिकवर करने के बाद.
क्योंकि मेरे नोन में अभी रिसेंटली उनको 15 डेज पहले हुआ था एंड 20 लाइक आफ्टर रिकवरिंग 20 डेज बाद उनको फिर से कोविड हो गया एंड ही इज नाउ इन अ वेरी सीवियर कंडीशन। तो उस चीज का ध्यान रखें। बाकी तो और सब एंजॉय करो घर पे यार। देखो घर वालों के साथ जितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो उतना ज्यादा टाइम स्पेंड करो। ये वाले 14 डेज में मैंने मतलब पहले पिछला पूरा लॉकडाउन करा ही है सबने सबके साथ, बट यार इस टाइम वाज दिस वाज डिफरेंट, दिस वाज वेरी डिफरेंट एंड बट cherish those moments. That's all I would say. And thank you for having me here. सब समर्थ ने मतलब कवर तो कर ही लिया है। स्टे होम, स्टे सेफ। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू सेलिब्रेट एनीबडीज मैरिज, बर्थडे और एनी अदर फंक्शन दैट इज इन योर फैमिली। जस्ट डिले इट फॉर योर ओन हेल्थ and for your own family. You do realize in these difficult moments how important the moments that you want to spend are important. So it's the difficult times that make you realize. I had that realization. Samarth had that too. That it's very important to how important it is to stay at home. So stay home, stay safe. And if you have corona, please don't worry. You can get treated very nicely at your home. Stay isolated and please don't go out. Please don't. Okay. So once again, thank you for taking out your time for us today. And to all the podcast series listeners, we hope that you will help us in spreading awareness. We also hope to see you soon in the upcoming episodes of the podcast series. This is me, Yukti Gablani, signing off for the day. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Take care.